today in this video of chapter solution we are going to discuss solubility. What is solubility and what are the factors affecting solubility? So first question arises, what is solubility? Solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in given amount of solvent at a particular temperature. All of you know, you are familiar with these examples. If we take 1 glass of water and in 1 glass of water if we put sugar, then in water if we add sugar, then this and stir the solution, then the sugar gets dissolved. Where does this sugar go? This sugar goes into the particles which are present in between the water molecules. जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में पार्टिकल्स है वहां ये शुगर के पार्टिकल्स चले जाते हैं. इनिशियली यू एडेड 10 grams of sugar to 100 grams of water and stir the solution. You observe that the sugar gets dissolved. Then you put more sugar and stir the solution. Again you find that the sugar gets dissolved. But after certain time you observe now on adding further sugar to the water or to the solution, it doesn't get dissolved. अब dissolve नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि water molecules के बीच में जो भी particles थे वो particles अब सारे sugar ने क्या कर लिए हैं? Occupy कर लिए हैं. Now there is no more space. इसलिए sugar particles अब water में dissolve नहीं हो रहे हैं. This type of solution is known as saturated solution at a given temperature. तो इस टाइम में 100 grams of solvent में कितनी शुगर डिसॉल्व हो गई वो उसकी क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी. Now there may be solubility of solids in liquid, gases in liquid. The most important one is solubility of gases in liquids. What are the factors which affect the solubility of gases in liquids? आप सब लोग एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा वाटर ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं. इन सब में कौन सी गैस डिसॉल्व होती है? CO2. Which gas is dissolved? CO2. So what are the factors which affect CO2? Solubility of CO2 in water. So this we are going to discuss. Solubility of gases in liquids. First factor is nature of gases. अब गैसेस भी दो टाइप की होती हैं. कुछ परमानेंट गैसेस होती हैं जैसे H2, O2, N2 which exist in a gaseous form at a room temperature. And there are some gases which can be easily liquefied at room temperature. So these gases are HCl, ammonia, CO2, etc. So what do we observe? That it is observed that easily liquefiable gases are more soluble compared to permanent gases, or we can say permanent gases are less soluble in water or a solvent than easily liquefiable gases. Second factor is pressure. सबने देखा है कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पे वाटर जो है, वाटर के अंदर क्या है? सोडा वाटर है. सोडा वाटर में क्या होता है? CO2 डिसॉल्व होती है. एंड दैट CO2 इज डिसॉल्व एट वेरी हाई प्रेशर. क्यों? क्योंकि प्रेशर हाई होगा, CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. CO2 ज्यादा डिसॉल्व होगी तभी आपको उसमें क्या आएगा? टेस्ट आएगा. सो प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड बाय हेनरीज लॉ. हेनरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टडी किया कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है गैसेस पे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस ही गेव दिस लॉ. दिस लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है. At a constant temperature, solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. देखिए आप सब लोग जानते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ये CO2 गैस डिसॉल्व होती है. ये बोतल है, इसके अंदर CO2 क्या है? डिसॉल्व स्टेट में. और यहाँ पे CO2 है. इस CO2 डिसॉल्व में और गैसियस स्टेट में क्या हो रहा है? एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है. जितने ज्यादा हम इसके ऊपर यहाँ पे जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा CO2 गैस क्या होगी? डिसॉल्व होगी.
जितना ज्यादा प्रेशर होगा CO2, तो अगर हम सॉल्युबिलिटी अमाउंट ऑफ गैस को किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करें, मोल फ्रैक्शन, किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करें, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में, देन what he observed that solubility of a gas at a given temperature is directly proportional to the pressure which is present above the surface of liquid. यहाँ पे जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस की क्या होगी, solubility होगी. That is why soda water bottles are filled at very high pressure to increase the solubility of CO2 in given solvent. So Henry's law can be expressed as P is directly proportional to Xg or P equals to KH Xg. Here Xg is mole fraction of gas and KH is Henry's law constant. Now Henry's law constant, it is first thing is that it is not a universal constant. जैसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा है PV equals to nRT, आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, where R is a gas constant and its value is same 0.083 liter atmosphere per mole per Kelvin, means for all gases its value remains same. But this is not a case with Henry's law. At Henry's law, what are the characteristics of Henry's law constant? First thing is it is not a universal constant. It is not a universal constant. What is the meaning of it? Its meaning is that for different gases it has different value. You can see even at same temperature 293 Kelvin, for helium its KH value is 144.97 kilobar. For H2 gas it's 69.16. For N2 gas even at same temperature 293 it's 76.48. Means its value depends upon nature of a gas. It is not a universal constant. Its value depends upon nature of a gas. First, not a universal constant. Value depends upon nature of the gas. And for a particular gas, its value changes with change in temperature. This is also important. For a particular gas, you can see here, for N2 gas at 293 Kelvin, its value is 76.48. For same gas N2, if we increase the temperature by 10 Kelvin, its value increases. So, value of KH increases with increase in temperature. So, it is not a universal constant. ये आपको ध्यान रखना है. Its value depends upon nature of a gas, and for a particular gas, its value changes with change in टेम्परेचर. कि टेम्परेचर चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी. तो आपने ये देखा है, यू हैव सीन दिस, दैट P इज इक्वल्स टू KH XG. तो अगर हम, और वी कैन राइट KH XG इक्वल्स टू P अपॉन KH. अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रहे तो जिन गैसेस के लिए KH की वैल्यू हायर है, अगर KH वैल्यू इंक्रीज होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, इफ KH इंक्रीजेस, अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो XG क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो इसका मतलब जिन गैसेस के लिए KH वैल्यू हाई है उनकी सॉल्युबिलिटी कम है. जैसे हीलियम के लिए KH वैल्यू इज वेरी हाई, अप्रोक्सीमेटली 145 किलोबार. वहीं O2 के लिए 293 केल्विन पे इट्स वैल्यू इज 34.86. तो O2 गैस के लिए KH वैल्यू कम है, दैट इज व्हाई O2 इज सॉल्युबल इन वाटर. आपने देखा है जितनी भी एक्वेटिक स्पीशीज है बेटा, एक्वेटिक स्पीशीज जो है दे यूज डिसॉल्व्ड O2 इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन. उनमें गिल्स हैं जो कि उस डिसॉल्व्ड O2 को यूज कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर. तो ये क्यों बना है बेटा कि देखिए 293 केल्विन पे O2 के लिए KH वैल्यू है 34.86. जैसे ही हमने टेम्परेचर 10 केल्विन इंक्रीज किया 303 KH वैल्यू बढ़ गई. नाउ यू कैन सी
KH एंड XG इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर KH बढ़ेगा तो XG कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो एक्वेटिक स्पीशीज अगर टेम्परेचर वाटर का बढ़ेगा तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो डिजोल्व है उसका अमाउंट वाटर में डिक्रीज होगा एंड द एक्वेटिक स्पीशीज will find difficulty in respiration. That is why aquatic species are more comfortable in cold water than in warm water. इसी से related next है effect of pressure. तो effect of pressure में temperature. Third factor is, what is third factor? Third factor is temperature. थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। आपने देखा है सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सजी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आप कोल्ड ड्रिंक को गर्म करोगे तो कोल्ड ड्रिंक की सॉल्युबिलिटी, CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। अब क्यों डिक्रीज होगी, दैट वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज, कि आपने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KH क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब KH इंक्रीज होगा तो XG इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे तो KH जहां इंक्रीज होगा वहां सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। नाउ यू हैव अ वैलिड रीजन व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस इन लिक्विड or in a given solvent decreases on increasing temperature. So what are the applications of Henry's law? First is soda water bottles are filled at high pressure. ये आप सबने देखा है, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं, जैसे ही आप बोतल को ओपन करते हैं क्या होती है, उसमें से गैस फिज आउट होती है। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अब अंदर का प्रेशर, तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है गैस यहाँ पे जो है वो बहुत हाई प्रेशर पे फिल्ड हो रही है। ये देखिए, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है CO2 गैस का, और बाहर प्रेशर क्या है, कम है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो दैट इज व्हाई व्हेन वी ओपन द बॉटल द गैस फिजेस आउट। गैस क्या होगी, फिज आउट होगी, एंड बिकॉज सोडा वाटर बॉटल्स आर फिल्ड एट वेरी हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, हेनरीज लॉ क्या कहता है, प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी तो क्या होगा, आपको टेस्ट अच्छा आएगा। अगर गैस फिज आउट हो जाएगी देन इट सिंपली बिकम्स स्वीट वाटर। नाउ सेकंड वी कम टू this application. Second application, tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium. This is very important. Scuba divers क्या होते हैं बेटा, scuba divers, what are scuba divers? Scuba divers are those persons which undergo depth in sea to study flora and fauna. सी में जाते हैं, कैसे, जैसे आप अंडमान निकोबार में कोरल्स हैं तो उनको स्टडी करने के लिए, जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं उनको स्टडी करने के लिए जो सी वाटर में डेप्थ में जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइवर्स। और आप सबने टीवी पे बहुत अच्छी तरह देखा हुआ है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, कि जो वो टैंक कैरी करते हैं, ऑक्सीजन टैंक जो कैरी करते हैं उसमें क्या डालते हैं हम, हीलियम। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए, व्हाई डू वी ऐड हीलियम एंड नॉट अदर गैस दैट कंटेन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड अलोंग विथ नाइट्रोजन इट कंटेन्स हीलियम। तो ऐसा क्यों है, देखिए ये हम समझेंगे। देखिए सी लेवल पे ये प्रेशर है, आपको पता है जैसे हम सी लेवल से अबव जाते हैं प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड एज वी मूव डाउन द सी लेवल प्रेशर क्या होता है, ये सी है, दिस इज सी। सी लेवल से अबव जाने पर प्रेशर डिक्रीज होता है, और सी लेवल से अगर हम डाउन जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे एक स्कूबा डाइवर है,
दिस फेलो स्कूबा डाइवर, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी किया और वो सी लेवल से डेप्थ में गया। जब डेप्थ में गया तो वहां प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब आपको पता है प्रेशर इंक्रीज होगा तो नेचुरली उसके ब्लड में गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। जितना उस सी लेवल पे था गैसेस जो उसकी ब्लड में डिसॉल्व थी ऑक्सीजन N2, उससे कहीं ज्यादा गैसेस अब क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बट व्हेन दिस स्कूबा डाइवर्स कम बैक एट द सरफेस एट द सी लेवल, अब हमेशा तो वहां रहेगा नहीं, जब वो सी लेवल पे दोबारा आता है तो अब प्रेशर क्या हुआ, जो प्रेशर इंक्रीज हुआ था वो प्रेशर अब डिक्रीज हो गया, सी लेवल पे प्रेशर कम है। अब प्रेशर डिक्रीज होते ही गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो क्या होता है कई बार ये जो गैसेस, डिसॉल्व्ड गैसेस जो ब्लड में होती हैं, दीज कम आउट, और कई बार ये जब आती हैं तो उस केसेस में नर्व्स बेंड हो जाती हैं एंड दिस कंडीशन इज वेरी पेनफुल, और कई बार स्कूबा डाइवर्स की डेथ भी हो जाती है। तो इस तरीके की कंडीशन नहीं हो, हाई प्रेशर पे भी उनके ब्लड में सॉल्युबिलिटी गैसेस की नॉर्मल रहे, कम रहे, दैट इज व्हाई द टैंक विच इज यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद हीलियम। अब आप कहोगे हीलियम ही क्यों डाला, अभी आपने पढ़ा है कि हीलियम की KH वैल्यू इज वेरी हाई। At 293 Kelvin, its value is approximately 145. तो KH वैल्यू हाई रहेगी तो हाई प्रेशर पे भी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा जाता है, why helium is added to the tank used by scuba divers? So value, so what is the answer? Answer is that its KH value is very high. So even at high pressure, its solubility remains less. थर्ड पॉइंट, एट हाई एल्टीट्यूड्स, अभी तो हम सी वाटर में डेप्थ में गए, अब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं। आपने वहां पे भी देखा है माउंटेन्स वगैरह पे जो जाते हैं दे ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, वहां पे भी ऊपर जाते हैं, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है तो उसमें रेस्पिरेशन में क्या आने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है। तो एट हाई एल्टीट्यूड्स लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड मेक देम अनेबल टू थिंक क्लियरली, कॉल्ड एनोक्सिया। तो वहां एनोक्सिया की प्रॉब्लम आती है बेटा। एनोक्सिया क्या होता है, अब अगर हमारे ब्लड में अब प्रेशर कम है, माउंटेन्स पे प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है, सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगी तो हमारी थिंकिंग एबिलिटी क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो ये सारी चीजें बेटा हम अप्लाई, ये सारी चीजें हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बट उनका क्या साइंटिफिक रीजन है, दिस वी कैन अंडरस्टैंड ओनली बाय स्टडिंग हेनरीज लॉ। एंड आई होप नाउ यू आर एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन एक्सप्लेन। अब आप किसी को बता भी सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ। नाउ लेट्स डिस्कस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। सो I am discussing in text question of NCERT, in text question 2.6 of NCERT book. Question is, H2S, a toxic gas with rotten egg smell, is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, calculate Henry's law constant. So, after reading the question, what do we observe? What is given? They have given us solubility in terms of molality. Small m indicates molality. So, molality of solution, m is 0.195. What we are supposed to calculate? Henry's law constant, KH. Pressure STP, at STP, pressure is 0.987 bar. Now we know the formula is P equals to KH into Xg. We have a pressure, but here we don't have value of Xg, mole fraction of gas, that is X, H2S gas. Instead of that they have given us molality. So what is molality? All of us know molality of solution is
number of moles of solute given per kilogram of solvent, per kilogram of solvent. That is, we can say that 0.195 moles of H2S gas is present in 1 kg or 1000 grams of water. So we have here number of moles of H2S gas, that is 0.195. Now we have to calculate number of moles of water. Number of moles of water is equal to mass of water. कितना है हमारे पास 1000 grams, और उसमें molar mass of water is 18 gram per mole. So when 1000 is divided by 18, it comes out 55.5 moles. Now we have number of moles of H2S, we have number of moles of H2O. From this we can find out mole fraction of H2S. So mole fraction of H2S is what? Number of moles of H2S upon number of moles of H2O plus number of moles of H2S. All of us know that mole fraction of a component is a ratio of number of moles of the component to the total number of moles of all the component present in solution. तो यहाँ पे solution में दो ही component है, एक H2S और एक H2O. H2S के number of moles molality given है, उससे हमने निकाल लिया 0.195 moles है, और water के 1000 ग्राम of solvent में है, तो water के number of moles कितने आ गए 55.5. So by putting these values, now we solve it. So XH2S comes 0.195 divided by 55.5 plus 0.195. So XH2S is 0.195, and if we add it, add करो इसको 55.5 plus 0.195. If you add it, then it comes out 55 कितना आ रहा है 55.695. So to simplify, X2S 0.195 upon 55.695 can be written as 55.7, and it comes out, if we solve it, it comes out 0.0035. Okay, so now we have a mole fraction of H2S. हो गया हमारे पास mole fraction of H2S. Pressure, STP पे pressure कितना है 0.987 बार. अब हमारे लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. By using formula, what formula? By using formula P equals to KH into X gas, we can find out KH. So what is KH? Here KH equals to P upon X gas. Pressure is 0.987 bar, और मोल फ्रैक्शन कितना है 0.0035. मोल फ्रैक्शन डज नॉट हैव एनी यूनिट. मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. सो ऑन सॉल्विंग दिस इट कम्स आउट 282 बार. तो हमारा आंसर क्या हो गया? आवर आंसर इज KH इक्वल्स टू 282 बार. This is our answer. KH equals to 282 bar. So in this way we can solve numericals based upon Henry's law.